Hello and welcome to Prowings CS. How you all are doing? I'm also great. Okay, hope you're enjoying your studies as well as exams बहुत nearby है. तो इस बार सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस का पेपर लिया था चैप्टर नंबर 8 to 13 का. ओवरऑल परफॉर्मेंस 71% एंड दैट्स फिनोमिनल. इसका मतलब आपका ये चैप्टर्स काफी लोगों का बहुत अच्छे से तैयार है. सो दैट्स वाज रियली गुड टू सी. ओके, चलो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे इसको हैंडल करना है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है सर ये टेस्ट पेपर्स वगैरह चाहिए ऑनलाइन. ऑनलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाली है. प्लीज सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम लिंक एंड आपको ये सारे पेपर्स इंक्लूडिंग पिछले के पेपर्स जो भी हुए हैं वो सब मिल जाएंगे. ओके, so fine, let's see and understand. The object of forensic audit is to relate the findings of the audit by the examining and gathering legally tunable evidence and producing it to the court. While ये object of forensic audit करके पूछा गया था, आंसर में एक्सपेक्टेड क्या था और क्या लिख के आए हो. ठीक है, चलो काफी लोगों ने अच्छे आंसर लिखे हैं तो फिर यू कैन चेक योर आंसर्स ऑल्सो. आप लोगों ने देखा होगा. फाइन, forensic audit हम लिख सकते हैं is a dynamic and strategic tool in combating corruptions, financial crimes, frauds, including investigations and resolving allegations of the frauds, embezzlements. It is conducted to determine the negligence. Perfect. And forensic audit is an application of science to crime concerns. ये भी बात बराबर है. Forensic science is a science which is applied to legal matters, especially to the criminal matters. बराबर. And recent corporate scandals at various corporate forensic auditing have now considered a new era of auditing to detect the frauds in the company that suspected for fraudulent transactions. मतलब अगर कंपनी में गलत काम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो ये बात को चेक करने कोई तो चाहिए ना. इसलिए फॉरेंसिक ऑडिट एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट बन गई है. और आजकल के तारीख पे सिर्फ ना अकाउंट्स का ऑडिट है, लेकिन ये भी चेक करना है कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा. एंड फिर हम लिख सकते हैं फोरेंसिक ऑडिट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक प्रोसेस involving a series of activities, tasks undertaken for establishing accuracy, authenticity of the transactions. मतलब ये नेचर होता है forensic audit का, एक systematic process है. The term forensic audit refers to specific guidance which is carried out in accordance to the produced evidence. And forensic audit task involves an investigation into the financial affairs of the entity and is often associated with the investigations into the alleged fraudulent activity. ये नेचर होता है फॉरेंसिक ऑडिट का. फॉरेंसिक ऑडिट वाले को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें अपने को पता है. इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स ने तो फॉरेंसिक ऑडिट ओल्ड कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट भी लिया था, तो उनके तो आंसर्स तो बहुत अच्छे थे इसमें. And the object of forensic audit is to relate the findings of the audit committee by examining and gathering legally tenable evidence and producing it to the court. ये object होता है कुछ ऐसा ढूंढ के निकाल सामने वाले को बता सके. And the process of this, the corporate will is lifted for the corporate entities to identify the fraud and the persons who are responsible for this kind of forensic audit. Forensic auditing involves an application of auditing skills to legally determine whether the frauds has been actually occurred or not. And the entire process, including planning, gathering evidence, reviewing the evidence, reporting the same. But in the process, it aims at the persons involving in the fraud with a view to take the legal action. मतलब ये intention तो forensic audit होती है. And forensic audit is a statement of observation which is gathered and considered while proving conclusive evidences. It is a medium through which the auditor expresses its opinion under the audit for forensic investigation. Okay, clear? फाइन. इसके रिगार्ड में या किसी की भी चीज के रिगार्ड में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह भी आते हैं ना, प्लीज आप टेलीग्राम चैनल्स पे पूछ सकते हैं. दैट विल बी रिजॉल्व्ड एज एंड व्हेन द टाइम परमिट्स. ठीक है, क्लियर? फाइन. तो ये था ऊपर इतना सारा डिटेल आउट. एक तरह से फॉरेंसिक ऑडिट का आंसर कैसे लिखना था, क्या लिखना था, वो बात मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की थी. ठीक है, एंड सेटिस्फेक्शन था, अच्छा था. ठीक है, अब यहाँ पे अपना कंपनी सेक्रेटरी का अकाउंटिंग ऑडिटिंग नॉर्म्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है. तो उसके हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. सिंपल सा क्वेश्चन था. एज पर CSES 1 के हिसाब से ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट अगेन एंगेजमेंट के हिसाब से एक, फ्रॉम व्हेन इज दिस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इफेक्टिव एंड व्हाट शैल बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. बस दो चीजें पूछी गई थी. तो ये इफेक्टिव हुआ है. दिस स्टैंडर्ड इज इफेक्टिव and recommendatory for the audit engagement accepted by the auditor on or after 1st of July, and it is mandatory for audit engagements on or after 1st April 2020. तो अभी रिसेंटली है. और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बस इतना तक जाननी था.
So audit engagement letter includes the objective and the scope of audit, the responsibility of the auditor and auditee, written representations provided or to be provided by the management to the auditor, including particulars of the predecessors, previous auditors, the period within which the audit shall be submitted to the auditor, the commercial terms agreed in the audit fees, the reimbursements of out-of-pocket expenses, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, मतलब ये काफी सारी चीजें जो ऑडिट के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए वो यहाँ पे आनी चाहिए थी in terms of audit engagement letter. Okay, and where the objective and the scope of the audit and responsibility of the management and the auditor have been established by law, clearly लिखा है, तो audit engagement should give a reference to that provision of law, and the management should acknowledgement and they should understand the responsibility while preparing and maintaining the records and devising a proper system so as to ensure compliance with the provisions of applicable laws. तो ये हो गया ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में. तो आंसर इस तरीके से लिख सकते हो. तो वेरी गुड आंसर रिटन बाय मेनी ऑफ देम. ओके, सेकंड क्वेश्चन था सेक्रेटरियल ऑर्डर ऑडिट एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी. फिनोमिनली रिटन आंसर, सब लोगों ने बहुत छापा है, जोर जोर से छापा है. ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स ने एलओडीआर के प्रोविजंस नहीं दिए थे. अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि कंपनी एक्ट या एलओडीआर के हिसाब से, पर फिर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे. तो क्या आंसर था, कैसे लिखना था? सिंपल, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट इज डिस्कस एज पर कंपनीज एक्ट. बात करूं तो सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 काफी लोगों को याद है, रेड विद रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्संस रेम्यूनरेशन, ये भी बराबर रूल के हिसाब से आपने लिखा था. वेरी गुड. तो किसको लगता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 crores or more, every public company having a turnover of 200 crores or more, and every company which is having loans or borrowings from banks or financial institution of 100 crores or more, उनको ये लगता है. They have to annex with the board report in the terms of section 134 subsection 3 के हिसाब से a secretarial audit report which is given by a company secretary in practice in form MR3. Explanation की बात करें तो hereby clarified that the paid up share capital, turnover, outstanding loans and borrowings हमेशा last day of the latest audited statement के हिसाब से ली जाएगी. अब मैं बोल रहा था एलओडीआर के हिसाब से भी आप डिस्कस कर रहे थे क्योंकि रेगुलेशन 24A सेक्रेटरियल ऑडिट का इंसर्ट किया है. तो कई स्टूडेंट्स ने लिखा, कई ने नहीं लिखा, पर ठीक है, मार्क्स तो दिए थे सबको. तो 24A रेगुलेशन के हिसाब से लिखोगे तो एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडियरी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड दे हैव टू अनेक्स विद देयर एनुअल रिपोर्ट a secretarial audit report which is given by a company secretary in practice as in the prescribed from with effect from the year ended 31st March 2019, यानी लास्ट ईयर के हिसाब से ये चालू हो गया है. And the terms listed entity जो यहाँ पे include किया गया है, which has been listed on a recognized stock exchange, जिसके designated security are issued or designated security are listed under any kind of schemes also, उसको हम listed entity बोलेंगे, and it is managed in accordance with the listing agreements, जो भी उसके हिसाब से. अब मटीरियल सब्सिडरी का मतलब यहाँ पे होगा जिसका नेटवर्थ या इनकम एक्सीड 10% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity or subsidiary. लेकिन एक हिंज आता है क्योंकि कई जगह पे रेगुलेशन 15 आता है जो ये बोलता है एलओडीआर कंप्लायंसेस एप्लीकेबल नहीं है. इसलिए ये ध्यान रखने का कि कई मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी या फिर ये रेगुलेशन 15 का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ना हो जाए. तो ये जो पॉइंट आता है ये आता है कि रेगुलेशन 15 के हिसाब से कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो आपको 24A में देना है, they shall not apply if the listed entity is having a paid up share capital not exceeding 10 crores and a net worth not exceeding 25 crores on the last day of the previous financial year, and the listed entity which are listed on the SME exchange, उसको भी compliance certification या secretarial audit नहीं लगता. However, other listed entity which are not companies but they are body corporates and they are subject to any other kind of regulations, the provision of section regulation 24A shall apply to that extent as it does not violate the respective statutes and guidelines. So उनको ये लग सकता है. Okay, I believe now it's very much clear कि applicable है कि नहीं. तो आप LODR का provision आंसर्स में डिस्कस कर सकते हो to show that you know the part of the answer also. ठीक है, clear? अच्छा, 2B का क्वेश्चन था, डायरेक्टर HR company has decided for renovation, modernization of the admin building which is situated in the BRICS complex, New Delhi, and there was special instruction for the transfer or destroy of bulky records to facilitate more space. मतलब देखो क्या है, दिल्ली की एक कंपनी है, दिल्ली का एक प्रीमाइसेस है और वो वहाँ पे रेनोवेशन का रिपेयर का काम कर रही है और जिसकी वजह से सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स काफी सारे होने की वजह से उनको बोला गया जो जरूरत नहीं है वो डिस्ट्रॉय करो, नहीं तो ट्रांसफर करो दूसरी बिल्डिंग में.
सेक्रेटरी डिपार्टमेंट अब ये रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करना चाहता है एंड एज अ सेक्रेटरी ऑफिसर आपको बताना है कौन से रिकॉर्ड्स हमारे पास रखने हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर फ्रेम किया, कुछ ने नहीं किया, ओके ओके था आंसर, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आंसर में आ सकता था प्रिजर्वेशन ऑफ सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स में। आप ये बोल सकते थे कि मिनट्स of all the meetings has to be preserved permanently, physical form में, electronic form में, with a time stamp, with the custody of the company secretary or the director authorized, office copy of notices, agendas, notes of account, other related papers duly preserved in the good condition in physical and electronic form. अगर कंपनी में merger amalgamation हुआ स्कीम तो minutes of all the meetings of the transfer company which is handed over to the transferee company वो preserve करना है, office copies, notice, agendas and notes to accounts and other related papers जो भी ट्रांसफर कंपनी के थे, जो ट्रांसफर कंपनी को हैंड ओवर किए वो प्रिजर्व करना है। प्लस उसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंपनीज जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो प्रिजर्व करने हैं, और जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स हमने कोर्ट्स अथॉरिटी से लेकर रखा है वो सब प्रिजर्व करने हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ओके, बाकी सारी चीजों को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर कहीं और भेज सकते हैं। तो इतनी सी बात समझानी थी। क्लियर? फाइन। नाउ डिफाइन इंटरनल ऑडिट एंड डिस्क्राइब द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। अरे फिनोमिनल, दिल से लिखा आंसर है सब लोगों ने। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। So as defined by the Institute of Internal Auditors, internal audit is an independent, objective assurance consulting activity designed to add value and improve the organization's operations. It helps the organization to accomplish its objectives by bringing a very systematic, very disciplined approach to evaluate and improve the performance of the effective risk management, control and governance process. तो ये independent internal audit का objective रहता है कि किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो सके और ऑर्गेनाइजेशनल में अपने आप में एक इंडिपेंडेंस आ सके। और इंडिपेंडेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिविटी इज अचीव्ड बाय एप्रोप्रिएट माइंडसेट, लोगों की सोच बराबर होनी चाहिए फॉर दैट। And the internal audit activity evaluates the risk exposure relating to the organization governance and information system. ये जानना होता है कि क्या क्या चीजें देखते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस कैसा है, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं, सेफगार्ड्स ऑफ एसेट्स क्या चीजें बराबर है कि नहीं, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशंस बराबर से हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करनी है। एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट्स, the internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of how risks are identified and managed in the above areas. They also assess the other aspects such as ethics and value within the organization, performance management कैसे चल रहा है, communication risk and control कैसे चल रहा है within the organization, वो सारी चीजें। An effective internal audit activity is a very valuable resource for the management of the company, for the management of the audit committee, understanding the organization structures, ये सब के लिए। और जब objectivity and skills and knowledge की बात करूँ तो देखो इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव स्किल्स नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिटर जो होता है कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल कंट्रोल। दे कैन मैनेज द रिस्क, दे कैन गिव द गवर्नेंस प्रोसेस। एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटर होता है ना, वो दैट प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू द स्टेक होल्डर्स, टू द रेगुलेटर्स, एम्प्लॉइज, प्रोवाइडर्स, कंपनी में दम है। एंड एज पर आईआईए द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स around the performance of the effective internal auditing, and all of them must be present and working. देखो हाउ एन इंटरनल ऑडिटर एज वेल एज इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म्स, ये जो अचीवमेंट ये कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर डेवलप होती है कि किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं। एक इंटरनल ऑडिटर एक कंपनी का इंटरनल फंक्शन की तरह, और वो जो कोर प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। द कोर प्रिंसिपल्स आर डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी, दे डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्पिटेंस एंड ड्यू professional care, independence and objective, aligns with strategic objectives of the management, is appropriately positioned and adequately resourced, and demonstrate the quality and the improvement areas of improvements therein, and they communicates effectively, provides risk-based assurances, insightful, proactive, and further focus and promotes organizational improvements. तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए जो इंटरनल ऑडिट के कोर प्रिंसिपल्स है, जो इंटरनल ऑडिट के एसोसिएशन के थ्रू प्रोवाइडेड किए गए। आप इतना भी लिख सकते हो, आप चाहे तो ऊपर का पॉइंट डिस्कस भी करके इंटरनल ऑडिट के बारे में कंक्लूड भी कर सकते हो, पर ओवरऑल आई वुड से आंसर बहुत अच्छा दिखा था, सो दैट वाज कमेंडेबल। अच्छा, इज इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी? ओके, ये भी अच्छा लिखा गया था। सो इंटरनल ऑडिट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 138 विद रूल 13 के हिसाब से। और इंटरनल ऑडिट किस किस को लगता है? एवरी लिस्टेड कंपनी को लगता है, ठीक है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी,
which is having a paid up share capital of 50 crores or more during the preceding financial year, turnover of 200 crores or more during the preceding financial year, outstanding loans borrowings from banks, financial institution 100 crores or more at any point of time during the preceding financial year, or outstanding deposit of 25 crores or more during the preceding financial year. जबकि हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सिर्फ दो ही कंडीशन याद रखनी थी कि टर्नओवर ऑफ 200 crores or more during the preceding financial year या outstanding loans borrowings from banks of 100 crores or more during the preceding financial year. So these companies are required to appoint internal auditor. They may either be an individual auditor or a body corporate. Clear? ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिपेयर अ इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट. आई वुड से कुछ तो ब्लेंडर्स किए थे, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था आंसर, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ तो ब्लेंडर्स किए थे. कुछ लोग हंस भी रहे, कुछ लोग समझ भी रहे कि क्या क्या ब्लेंडर्स हुए थे. ठीक है, चलो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था. साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट की बात हो रही, तो साइबर सिक्योरिटी इज एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, disruptions or damages to the reputation of the organizations and arises from the failure of the technology. तो टेक्नोलॉजी सिस्टम फेल हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर ऑडिट्स, इज टू प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस and policies, procedures, and identify and protect and detect and respond and recover. And following can be the illustrated checkpoint of cyber audit. एक तो checkpoint as to the personal security क्या रहेगा, checkpoint as to physically assess the electronic forms, and accounts and password management कैसे होगा उसके बारे में, confidentiality डेटा कैसे रखा जाएगा, and compliance of audit policies वगैरह चेक करनी रहेगी. So that can be the result of cyber security के बारे में आप लिख सकते थे. These are the illustrative risks: personal security, physical access, password management, data confidentiality, procedures वगैरह. Clear? That about how do you what do you mean by environmental audit, and what is the process chart of environmental audit? Okay, environmental audit. Okay, काई लेवल समझ में आ गया कि क्या लिख के आए हो, बट ठीक है, आंसर अच्छा था, मार्क्स दिए गए हैं. The environmental audit is a general term that can reflect the various types of evaluations intended or identified by the environmental compliances and management of the systems and the gaps जो रहते हैं. तो एक तरह का टर्म है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि करेक्टिव एक्शंस कंपनी को कहाँ पे लेने चाहिए. और एनवायरमेंटल ऑडिट है वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मेजर्स के बारे में बात करता है. There are generally two different types of audit. एक होता है compliance audit, एक होता है management audit. ये जो ऑडिट होता है, these audits, they are intended to review the site of the company's legal compliances, कि वो अपने आप में लीगली बराबर है कि नहीं. देखो कंप्लायंस ऑडिट का नेचर ये होता है, they begin with the determining application of whether they are complying with so and so law, so and so reasons or not. This tends to include central laws, state law, local laws, इन सब का. अब एनवायरमेंटल ऑडिट की नीड क्या है? देखो एनवायरमेंटल ऑडिट इसलिए चाहिए का बिजनेस जो है वो environment को largely impact करता है, and to ensure that the core decisions are not spoiling the company's market for the products and destroying the company's resources. It highlights the areas of inefficiency in process and the amount of resources that are used out of proportionate. ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि गलत तरीकों से environment तो use नहीं हो रहा. And it highlights excessive wastage. It provides the opportunity for the business to decrease the waste output and reduce the cost of the company. तो ये सारी चीजें environmental audit में देख सकते हो. Because that about process of environmental audit क्या होगा? तो process of environmental audit ऐसे जाएगा, understanding the industrial activity and pre-audit and planning stage, collections, जिसमें हम बोल सकते हैं collection of the background information about the entity, defining the objective, the scope of the audit, development of audit plan, on-site field activities में हम बोल सकते हैं audit committee have the objective that key faculties क्या क्या चीजें चाहिए, key schedules meetings क्या होने चाहिए, interviews, areas of concern find करना, document review, काफी सारी चीजें जो audit के respect में होनी चाहिए. And assessing the impact and the post audit requirements, इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि final evaluation of the findings and preliminary report जो submit करनी रहती है कि environment पे कितना impact हुआ है, management कितने काम कर रही है, एंड फाइंडिंग्स क्या हो रही है. देखो आजकल कई जगह पे ऐड आती है, जैसे दिल्ली सरकार ने सो एंड सो किया है पराली जलाने के लिए, वो सब चीजें, ये एक तरह का एनवायरमेंटल ऑडिट असेसमेंट है जो गवर्नमेंट अपने आप में डिस्प्ले करिए कि वी हैव टेकन रिक्विजिट स्टेप फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो इसी तरह कंपनी इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है वो बताना पड़ता है. एंड फॉलो अप एंड रिव्यू वेरीफाई द एक्शंस टू बी टेकन बाय द एनवायरमेंटल ऑडिट रिक्वायरमेंट्स. वो सारी चीजें आंसर में आ सकती थी. ठीक है, ओवरऑल अच्छा था. तो ठीक है, अच्छा इसका आंसर ओके ठीक है. इसका आंसर ऐसा था, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी पार्टनर्स है एलएलपी के एंड इट्स अ फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. मिस्टर बी इज होल्डिंग 1% शेयर इन XYZ. वाइफ एंड डॉटर ऑफ ए हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम, दे आर होल्डिंग 1% शेयर इन XYZ.
and Mr. A has been offered secretarial audit as per this requirements. तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए था आंसर? एक आई बिलीव कुछ स्टूडेंट्स को शायद एक क्वेश्चन का एक पार्ट समझ में नहीं आया था. वाइफ एंड डॉटर ऑफ ए हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम 1% शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड के बाद में एक वर्ड था ईच. एग्जैक्टली ये वर्ड किसी ने मिस किए हुए हैं. I can say that ये जो each था ना कई लोगों ने each मिस किया हुआ है. रीजन बीइंग इनका वाइफ 1% हो गया, डॉटर 1% हो गया, और यहाँ पे मिस्टर बी होल्ड्स 1%, यानी टोटल 3%. कई लोगों ने 2% लिखा है. ये गड़बड़ कर दिया. तुमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर तो आता था, कहाँ गड़बड़ करके आए हो? ईच वर्ड मिस कर दिया. देखो क्या छोटी सी चीज मिस कर दी. तो मिस्टर ए हैज ऑफर्ड सेक्रेटरियल ऑडिट. कैन ही बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरियल ऑडिटर? तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन था. यहाँ पे सिंपली CSES के हिसाब से लिखना था कि इन फॉलोइंग केसेस इट कैन बी कंक्लूड दैट द ऑडिटर हैज सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द ऑडिटी एंड ही शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट जब ऑडिटर होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल और शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50,000 rupees. Auditor indebted to the audit committee for an amount exceeding 5 lakhs. Indebtedness of the committee may seriously impair the independence of the auditor. Auditor was in the employment of the audit committee for preceding 2 years. In above mentioned conditions, auditor was debarred. उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए हम ये लिख सकते थे कि an auditor is debarred from accepting audit engagement if he or his or holding more than 2% of the paid up share capital, या 50,000 whichever is low, or more than 2% of voting powers as the case may be, and the auditor can hold singly or along with the partner, spouse, parents, child वगैरह सब जोड़ के. In the given case, A is not directly holding any interest. However, according to para 3.1 of the CSES 1, A is having a substantial conflict of interest as the aggregate holding of the paid up share capital of the wife, daughter and partner is 3% and she is not eligible to take the secretarial audit. अब समझ में आया? ठीक है, फाइन. और दूसरा क्वेश्चन था A is a practicing company secretary. He has taken a personal loan of 5 lakhs rupees from the company and who is designated as a partner of A. The payment of such loan is outstanding. Can he be taking as an internal auditor? Can he take such assignment? Okay, कई स्टूडेंट्स ने बराबर लिखा लेकिन कई स्टूडेंट थोड़ा मिस कर गए. आपके आंसर्स में ये देखा मैंने, आपने लिखा कि इंटरनल ऑडिटर इज नॉट अ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड देयरफॉर यू कैन टेक इंटरनल ऑडिट. नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट है. इंटरनल ऑडिट हो या सेक्रेटरियल ऑडिट हो, दोनों के हिसाब से बराबर था. तो प्लीज उल्टा सीधा मत लिखना. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ऑडिट ही हैज एक्सप्लेन बिलो shall not be construed as a conflict of interest. यहाँ पे auditor holding not more than 2% of paid up share capital, nominal value of 50. Auditor indebted to the company of an amount not exceeding. याद रखना हर जगह पे not लिखा हुआ है. So not exceeding 5 lakhs. An auditor is an employment of the audit committee for more than 2 years ago. तो यहाँ पे the above केस में बोल सकते हैं auditor shall be eligible to take the audit engagement only if he discloses this fact in writing before accepting the audit engagement. तो हम ये बोल सकते हैं कि Mr. A has a conflict of interest, मना नहीं करते, but it doesn't debar him from taking the internal auditor if he disclose the fact before appointing. तो ये लिख सकते थे. क्लियर? इसलिए बोला कुछ ने लिखा कुछ ने नहीं लिखा और इस तरह से यहाँ पेपर चला गया. ठीक है, Question 6 का पार्ट था describe the auditing principle which should be observed by an auditor while performing the audit. तो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था. तो इंटर ऑडिट करते हुए ये बेसिक सा आंसर था. ऑडिट करते हुए बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए: इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ऑडिटर हैज टू बी ऑनेस्ट, सिंसियर, इम्पार्शियल, बायस, फ्री फ्रॉम बायसनेस. कॉन्फिडेंशियलिटी, ही हैज टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. देन स्किल एंड कॉम्पिटेंस के हिसाब से ऑडिटर मस्ट require adequate training, experience. Issue has to show his skillfulness. Work performed by the others. If the auditor delegates some works to others, then he has to keep a check as an expert that he is performing very well the work or not. Then documentation के बारे में बात करें तो auditor has to see the documents which are important for the purpose of audit. Then planning and audit एविडेंसेस की बात करें तो ऑडिट हमेशा प्लान से काम शुरू करता है. टाइमली मैनर में कंप्लीट हो, कैसे काम हो रहा है उसका ध्यान रखता है. ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं इन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर देन. एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल की जहां तक बात करें तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम. ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, जिसके बेसिस पे अपना ऑडिट डिसाइड करते हैं. ऑडिट के कंक्लूजन और रिपोर्टिंग्स की जहां तक बात करें तो ऑडिट एविडेंसेस जो ऑडिटर कलेक्ट करता है
that should give him that whether the policies are consistently applied, whether informations and regulations are complied with, where there is a adequate disclosures of the matter or not. ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है. So that becomes a basic answer. Students का आंसर काफी अच्छा था, तो मार्क्स दिए गए थे. Clear? And write a note on audit सैम्पलिंग. सिंपल सा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन था. कई लोगों को अपना या तो एग्जीक्यूटिव याद आ गया होगा पुराना वाला, या किसी ने कॉलेज के आंसर्स छाप के आए हैं, तो ठीक है. चलो, ऑडिट सैम्पलिंग, कई बार आपको ऑडिट सैम्पलिंग लेना पड़ता है. तो ऑडिटर्स ड्रॉज अ कंक्लूजन अबाउट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जिसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, बाय सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ डेटा. एंड दिस सैंपल ऑफ डेटा डिटरमाइंस द क्वांटम ऑफ द रिस्क दैट द ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट. नाउ देयर इज एक्चुअली नो स्टैंडर्ड रूल कि सैंपल का साइज कितना होना चाहिए. सैंपल का साइज एक्चुअली डिपेंड करता है कई सारे जजमेंट्स के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क फैक्टर्स. सो एप्लीकेशन के ऑडिट रिस्क 100% पॉपुलेशन से कितना सैंपल लिया जाए, वो ऑडिटर को डिसाइड करना होता है, डिपेंड ऑन द रीजनेबलनेस एंड द ऑडिट सैम्पलिंग. पर क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो ऑडिट सैम्पलिंग के हिसाब से ये चीजों का ध्यान रखने का कि ऑडिट प्रोसीजर्स एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैज टू बी कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग द सैंपल. सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, या अलग अलग चीज में अलग अलग सैंपल हैज टू बी चोजन, ये देखने का. रैंडम सैम्पलिंग भी आप कर सकते हो, ये पॉइंट्स देखते हुए, ताकि कॉमनैलिटी में वो मीट हो रहे कि नहीं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेकिंग अ सैंपल ऑफ अ प्रॉपर्टी मैटर, के प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्टमेंट्स है, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स क्या थे, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, उसकी स्टैम्प ड्यूटी क्या हुई, ये कोरिलेटेड पार्ट से आप चेक कर सकते हो. और सैम्पलिंग ऑफ द अदर स्टैट्स, जो कि स्ट्रैटिफैक्शन एंड वैल्यूएटेड एविडेंस के हिसाब से, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना उससे सेटिस्फाइड हो, कितना एविडेंसेस को वैल्यू करते हो उसके हिसाब से, ठीक है. ओवरऑल जैसे मैंने बताया था 71% अच्छा पेपर लिखा गया, एंड ये चैप्टर्स आपको आते हैं ऐसा दिल से लगा तो था, ठीक है. अच्छे से एग्जाम में करके आना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.